Assalamu alaikum everyone. I hope you're all fine and keeping safe. I preferred not to call you for a Zoom online session in the afternoon because you had your submission of the final project today. So what happens when I'm studying from my teachers at a university while I was doing my MS and my MBA was that the day we had our final projects and concurrently we had a class, so our teachers used to give us time for that very last hours of the day to give a final touch to our project. They wanted us to concentrate there, which always had gone in our favor, and the class used to be on some other day, so it has always benefited me. I tried doing the same for you and you kind of agreed with me in the afternoon. So I hope the day was productive for you and you used it to your best to add precision and worth to your final project. I want you to score well on your project. It's a 15 marks endeavor. I want you to give it your best shot. So as it was agreed, I'll have the lecture recorded for you. Okay, right. Today's lecture is on online retailing and service. Today's lecture is on online retailing and services. You can have it taken up from the PowerPoint. You can have it taken up from the book. I'm more comfortable teaching from the book. I mean, I am comfortable teaching both ways, but I don't know. The book sounds more um I'm more comfortable teaching from here. Yeah, so I should agree to that. Okay, so it's on the chapters on online retailing and services. So students, before we discuss the online retailing sector, what it constitutes, how far it goes, what dimensions it includes, what advantages and disadvantages it has in comparison to offline retail, how it has evolved over the number of years. We need to know a few facts about our economy. Listen very carefully. This chapter has been written from a US perspective, which is by far the world's biggest economy, and we should have, idea about it. But then again, I was thinking, if I'm in place of you and I'm an e-commerce student, I would want my professor to give me some insight on the Pakistan online retail sector as well. Okay, so it must be striking to you that we had a class in the afternoon, yet I'm recording the lecture at 11 past 16 in the night. So what took me so long? Well, the thing is that I had to sit down and collect all the insight. I mean, if I'm in your place, although I'm studying a book from a foreign writer, it's about the US economy and the US e-commerce, but yet I expect my teacher to brief me on what is happening in the local scene. I hail from Pakistan, so I want my teacher to share some insights about the local e-commerce arena too. So it nearly took me a day, and I had to take someone's help to help me find, some insights. So the book is here in front of you. You can see the facts and figures about USA, okay, but it does not have any insight about Pakistan. So I believe that uh, as soon as you finish with your degree, you're going to work in the field for some time. And since you're studying this course, being a Pakistani student, and the e-commerce market is evolving in the country, so you should be having some facts on your tips. Okay, so first I'll give you some insight on the online retail sector in Pakistan. Okay, so please keep a pen and a notepad with you because you have to write a lot with me. Please bear with me on this. You have to write a lot with me. The chapter, as per design, is very friendly to read. It's a soft, short, juicy reading. Trust me. I mean, you have taken bitter pills earlier on the course. The chapters initially were technical, they were dry, and even I didn't like them. But since we were studying e-commerce, so we had to study things from the background. Okay. But this chapter, as I said, it's a very interesting piece of reading. I am just augmenting it with some literature and some online facts and figures about Pakistan. Okay, I hope you enjoy and you develop an insight, because the whole idea is to see where you are as a country on the e-commerce roadmap, and where some international foreign companies are, and build a perception accordingly. Okay, right? So the chapter's title is Online Retail and Services. All right. Okay, the first thing I'm going to share with you is the first thing I'm going to share with you is some facts, as I said, some facts about the retail market in Pakistan.
right? So let's talk about the offline market first. Take a notepad, please, and write down that the offline market in Pakistan, the offline market is basically the traditional market, okay? The brick and mortar stores we have, the physical stores we have, okay? The offline retail market in Pakistan is estimated to be around of 152 billion of financial worth, okay? The total worth of the Pakistan's retail sector, the offline, I mean, the current value of Pakistan's offline retail sector is estimated to be $152 billion. ठीक है? अच्छा, आपको मैं साथ साथ ये भी बताते चलूं कि जो हमारा ऑफलाइन रिटेल सेक्टर है, इट्स कंसिडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. Okay, we are agrarians by economy. Okay, this is followed by the industrial sector, and the third sector that contributes to the GDP of our nation is the offline retail sector. It accounts to 18% of the total GDP. ठीक है, 18% जो ग्रोथ जीडीपी की होती है वो ऑफलाइन रिटेल सेक्टर करता है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, ये आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है. ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर. इट्स प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स to more than 16% of the total labor force. और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. These are big figures. ठीक है, सही है. अच्छा, अगर हम देखें तो between 2011 to 2015 the size of the retail pie in Pakistan increased. It jumped from $96 billion to $133 billion. यानी कि इन 4 सालों में, इस 4 साल के अशरे में 2011 से 2015 तक there was a percentage increase of 38.5 years, 38.5%, I'm sorry. ठीक है, सही है. तो जो current estimated value है, the current estimated value of the Pakistan retail sector in terms of financial worth is $215 billion. ठीक है, सही है. तो हमने देखा कि जो ऑफलाइन ट्रेडिशनल सेक्टर है, ये तीसरा बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और 18% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के जीडीपी में. ठीक है, सही है. और इसमें जो है वो पिछले 4 सालों में हमने देखा कि 38.5% का इंक्रीज देखने में आया है. और ये जो ग्रोथ का पाई है 2011 से 2015 में, इसमें हम ग्रोथ देखते जा रहे हैं. पाई का साइज बड़ा होता जा रहा है. ठीक है, सही है. हमने ये भी देखा कि ये एग्रीकल्चर के बाद सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है. ठीक है, सही है. ज्यादा जॉब्स जो हैं वो लेबर फोर्स में वो एग्रीकल्चर के बाद यहाँ से आती हैं, और 16% जॉब यहाँ से क्रिएट होती हैं. ठीक है, तो ये तो मैंने फिगर्स आपसे शेयर करी ऑफलाइन रिटेल मार्केट को लेके. अब आप ये पूछ सकते हैं कि मुझसे फिगर्स आप कहाँ से शेयर कर रही हैं. तो बेटा ये डॉन न्यूज़पेपर के जो मेरी सोर्स जो है वो डॉन न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द लीडिंग डेलीज ऑफ द कंट्री. ठीक है, आप चाहें तो इन्हें जाके कंफर्म भी कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट के बारे में. तो पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट जो है उसके बारे में आप लिखिए कि जो हमारी पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसको अगर हम एस्टिमेट करें, इसकी फाइनेंशियल वर्थ जो है, इट कम्स अराउंड समवेयर टू $99.3 बिलियन. ठीक है, इट कम्स अराउंड समवेयर टू $99.3 बिलियन. और हमने देखा था कि जो हमारी ऑफलाइन रिटेल सेक्टर है उसकी जो वर्थ कितनी थी, वो $152 बिलियन थी. तो ऑनलाइन मार्केट की जो है वो एस्टिमेटेड वर्थ कम है. ठीक है, सही है. अच्छा, ऑनलाइन मार्केट में इट इज ऑब्जर्व दैट कैश ऑन डिलीवरी इज द प्रेवलेंट पेमेंट मोड. ठीक है, it is still the prevalent payment mode, and this makes 60% of the total transactions of the volume. ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, 60% ट्रांजैक्शन जो है उनमें कैश ऑन डिलीवरी से हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो है डिजिटल पेमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है क्रेडिट है, डेबिट है, प्रीपेड कार्ड्स हैं, वी हैव इंटरबैंक ट्रांसफर फंड्स, एंड वी हैव मोबाइल वॉलेट्स. ठीक है. They have grown impressively, especially in the year 2018, and the whole worth of digital payments has reached 40.1 billions in Pakistani rupee, and this was standing at 20.7 billion back in 2017. तो हमने देखा कि 93.7% ग्रोथ हुई है. ठीक है, सही है, राइट. ये मैंने आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर किए पाकिस्तान के ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट के बारे में. ठीक है.
अच्छा, हमें इसके साथ साथ पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो है वो जीडीपी कितना है, टोटल जीडीपी कितना है, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान के टोटल जीडीपी को देखें तो जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में, वो 2019 के फिगर्स अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स इट वाज स्टैंडिंग एट 320 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये डेटा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एज पर वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं जो मैंने आपके सामने अभी रखी हैं, ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, एक वर्ल्ड जीडीपी होता है ना, ठीक, और आपका कंट्री का जीडीपी होता है, तो एज फार एज द वर्ल्ड जीडीपी इज कंसर्न, पाकिस्तान जो है उसमें 0.26% की रिप्रेजेंटेशन रखता है, ठीक है। The GDP value of Pakistan represents 0.26% of the world economy. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम दुनिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है 50% से भी कम है, सॉरी 1% से भी कम है, ठीक है, 0.5 से भी कम है, 0.26% है, ठीक है, सही है। अच्छा, आगे हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ अरसे में पाकिस्तान में जो है ब्रांचलेस बैंकिंग जो है वो उसमें फरोग देखा गया है, ठीक है, सही है। और ये एक अनटैप्ड मार्केट थी, इसमें हमें ग्रोथ नजर आई है, ठीक है। हम साथ साथ ये भी देखें कि पाकिस्तान में जो है वो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि अर्बन एरियाज में, अर्बन डेवलप्ड कंज्यूमर्स में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होने का ट्रेंड ज्यादा होता है, ठीक है। सो द कंट्री हैज अबाउट 71.71 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स, ठीक है, सही है। And there are 69.64 million people who have 3G and 4G subscriptions, ठीक है। लेकिन despite that, e-commerce has not reached to a level where electronic money should have been predominantly used as a mode for online transactions, ठीक है। लोगों के पास ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन तो हैं, लोगों के पास 3G और 4G सब्सक्रिप्शंस भी हैं, but despite that जो एक ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे थे, ई कॉमर्स के जो एनालिस्ट हैं वो ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे थे ई कॉमर्स ट्रेड में, वो इतनी तेजी से सामने नहीं आई है, ठीक है। उसकी बहुत सी वजूहत है। अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को देखें तो सिर्फ 2018 में, ठीक है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो थे कोई, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक साल में, जी हाँ, 2018 का अगर हम अशरा देखें तो सिर्फ एक साल में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ हुए हैं वो 18.7 बिलियन के थे, ठीक है। तो राइजिंग ट्रेंड तो नजर आ रहा है हमें, और हम ये भी देख रहे हैं कि ओवर द रिसेंट इयर्स मोबाइल कॉमर्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज बिकमिंग द सक्सेसफुल कस्टमर टच पॉइंट, ठीक है। और एक जो, अच्छा, इस मोबाइल कॉमर्स में मल्टी कैटेगरीज नजर आती हैं जो कि इस मोड ऑफ कॉमर्स को टैप कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें नजर आता है कि रेस्टोरेंट्स का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, सही है। People have more a better experience when they are using restaurants for mobile commerce. The users, what they can do is they can sit and pin a location, see a variety of products, they can put filters, they can use multi-cart features, they can track their order history, so it's considerably easier, ठीक है। There are many business ventures in Pakistan who want to adopt mobile commerce to make services and products available to consumers. And there's an estimation that by 2021, mobile commerce sales will account for 50%, 54% of the total e-commerce sales in the world. This is a big figure, by the way. हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है मोबाइल कॉमर्स का दुनिया में बढ़ रहा है और ये पाकिस्तान में भी है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है इट इज स्प्रेडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, और पाकिस्तान में भी है। और सबसे ज्यादा मोबाइल कॉमर्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो मिलेनियल्स हैं, ठीक है, यंग लोग हैं। दे आर, देखते हैं एक्चुअली वजह क्या है यार, देखो, दे आर मोर एमिनेबल टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो एप्स को अडॉप्शन ये जल्दी कर लेते हैं, और एक एक फिगर ये भी कह रही है कि जो थर्ड जनरेशन सेलुलर मोबाइल सिग्नल्स हैं, ठीक है, they cover more than 70% of the population as of March 2017, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो 4G सर्विसेज हैं they have become accessible to more than 30% of the population in the country, तो मोबाइल कॉमर्स का फिर पेनिट्रेट करना बनता है, ठीक है, सही है।
अच्छा, मोबाइल कॉमर्स को मैं थोड़ा सा जो है इसमें आपको आगे थोड़ी सी चीजें शेयर करती हूँ एज फार एज पाकिस्तान एंड द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ ई कॉमर्स मर्चेंट्स यूजिंग ई पेमेंट गेटवेज ऑफ बैंक्स हैव नाउ रिजन टू 1093। ठीक है, और ये लास्ट ईयर से 91.6% ज्यादा है। ठीक है, सही है। मेरे कहने का मकसद क्या है कि जो ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं वो उनमें ये रुझान के वो ई पेमेंट्स अब ले रहे हैं बैंक्स के थ्रू। दे हैव मेड बैंक्स अ गेटवे, और वहां से जो है वो ई पेमेंट्स ले रहे हैं। इनमें ट्रेंड बढ़ा है। ठीक है, और ये ट्रेंड जो है 2017 और 2018 का अगर हम अशरा देखें तो 91.6% इसमें इंक्रीज आया है। ठीक है, मोबाइल वॉलेट्स का बहुत इंक्रीज है आजकल, जिसमें जैज कैश वॉलेट जो है इट्स मोबाइल वॉलेट है इसमें। ठीक है, और रफली इट अकाउंट्स फॉर 30 और 40% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे होता है। ठीक है, एंड इट इज जस्ट सिमिलर टू द डेबिट एंड द क्रेडिट कार्ड दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, सही है। अच्छा, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है पाकिस्तान में वो 60 to 70% जो है उसका यूज है। लेकिन जो है ये मोबाइल वॉलेट जो है इसमें 30 to 40% ट्रांजेक्शन अब इसमें से भी हो रहे हैं। ठीक है, एक फर्दर हम इसमें क्या बात कर सकते हैं कि सवाल ये है कि खरीदारी की हम बात करते हैं मोबाइल कॉमर्स से लोग खरीदारी किस तरह की कर रहे हैं। ठीक है, ये बात तो है कि मिलेनियल्स इसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उसका जो है ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। एक ऑब्जर्वेशन जो परचेजेस को लेकर सामने आई है वो ये है कि कंज्यूमर्स जब मोबाइल कॉमर्स के थ्रू बाइंग कर रहे होते हैं तो वो खरीदारी ज्यादा करते हैं। कैच माय वर्ड्स, पाकिस्तानी टेंड टू पाकिस्तानीज, हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टेड, सॉरी, दे आर ऑब्जर्व्ड टू स्पेंड मोर व्हेन बाइंग थ्रू स्मार्टफोन्स। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू लास्ट ईयर जो निकाली गई है, जो स्पेंडिंग की गई है, इट वाज अराउंड 9600। ठीक है, एज कंपेयर टू बाइंग डन थ्रू डेस्कटॉप्स। डेस्कटॉप से अगर खरीदारी हम देखें तो वो 9100 की है। हम अगर देखें स्मार्टफोन से तो वो 9600 की है। तो कहीं ना कहीं इंक्रीज तो हमें नजर आ रहा है कि स्मार्टफोन से लोग कंपेरेबली ज्यादा स्पेंड करते हैं, ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं। ठीक है, सही है। टैबलेट से अगर स्पेंडिंग देखी जाए तो पीपल स्पेंड अराउंड 4000 to 700, 4700 अराउंड काइंड ऑफ अ फिगर। अच्छा, फिर द टाइप ऑफ डिवाइस यू यूजिंग दैट आल्सो मैटर्स। इसमें iOS यूजर्स भी हैं, एंड्रॉइड यूजर्स भी हैं। तो देखने में आया है कि जो iOS यूजर्स हैं वो स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, यानी कि वो 14500 तक का खर्चा भी करेंगे, और जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो 7500 तक का खर्चा भी करते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, तो वी हैव अ वास्ट स्कोप ऑफ ई कॉमर्स ग्रोथ इन पाकिस्तान एंड इट रिमेन्स एन अनटैप्ड रिसोर्स। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए के अगर हम फिगर्स को देखें तो उसके मुताबिक देयर आर 162 मिलियन मोबाइल एंड 71 मिलियन 3G एंड 4G सब्सक्राइबर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, फिगर्स तो हमें नहीं से मिल सकती हैं, बट डिस्पाइट दीज स्टैगरिंग फिगर्स, जो ई कॉमर्स मार्केट है इट स्टिल रिमेन्स अनएक्सप्लॉइटेड। ठीक है, सही है। लेकिन और इसकी जो रीजंस हैं, ठीक है, ये बात कि डिस्पाइट के जो 3G 4G सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और मोबाइल की जो ओनरशिप है वो बढ़ रही है, लेकिन जो ई कॉमर्स का जो सिनारियो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या इसमें आता है, हमारे पास आता है लैक ऑफ अवेयरनेस है अमंग्स द मासेस कि हम मोबाइल्स को यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए भी। ठीक है, फिर ट्रस्ट का बहुत बड़ा डेफिसिट आता है बिटवीन कस्टमर्स एंड ओनर्स ऑफ ई कॉमर्स ब्रांड्स। ठीक है, हमें ट्रांजैक्शन को लेकर डर होता है कि पैसे सही जगह पहुंचेंगे या हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो जाए। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट भी कोई खास उसको प्रमोट नहीं कर रही है ना। ठीक है, सही है। पाकिस्तान जैसे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे स्कैम्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत होती हैं, तो हम हुकूमत की प्रमोटेड स्कीम्स को, हुकूमत के प्रमोटेड प्रोग्राम्स को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो हुकूमत का भी इसमें हमको खास अमल दखल नजर नहीं आता है। तो एक वजह ये भी है कि डिस्पाइट के पेनिट्रेशन है 3G 4G कनेक्शंस की, और डिस्पाइट के मोबाइल फोन्स का एक्सेस बढ़ रहा है लोगों के पास, लेकिन वो ये स्टिल एक अंडर यूटिलाइज्ड जो है वो सेक्टर है। हम उसको कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए टू आवर एडवांटेज यूज नहीं कर रहे। तो बहुत से फैक्टर्स है, कुछ मैंने आपसे शेयर किए अभी।
अच्छा, रिटेल सेक्टर में बहुत सारा जो ऑनलाइन रिटेल सेक्टर है, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशल मीडिया से भी आता है। सोशल मीडिया से यानी कि हम जो फेसबुक यूज करते हैं, एक पॉइंट इन टाइम था कि इसको हम सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन जितने भी ऑनलाइन मर्चेंट्स उन्होंने देखा कि लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं काफी ज्यादा नेटवर्किंग के लिए, और इस पे बहुत से ब्रांड्स के डिस्कशन भी होते हैं, कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। तो कंपनीज ने क्या किया, अपने वेबसाइट पेज के साथ साथ उन्होंने फेसबुक के पेज भी बनाए अपने जाके, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस शुरू कर दी। ठीक है, सही है। तो एक तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान में जो है देयर आर अराउंड 37 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स। ये जनवरी 2020 के फिगर आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, 37 मिलियन है हमारे पास सोशल मीडिया यूजर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, और इनमें जो है अगर हम अप्रैल 29 से जनवरी 20 तक देखें, जनवरी 2020 तक देखें, तो ये 7% इंक्रीज हुआ है सोशल मीडिया के यूसेज में पाकिस्तान। ठीक है, सही है। हम ये भी देख सकते हैं कि यूजर जनरेटेड साइट्स बहुत डेवलप हुई हैं, जिसमें अगर लोग जाके अपने ओपिनियंस लिखते हैं, अपने रिकमेंडेशंस लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं गुड्स के बारे में जाके। ठीक है, सही है। अब बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है, जहाँ पे हम जाके हमने जो फेस्टिवल्स अटेंड किए उनके बारे में अपना व्यू लिखते हैं, जाके अपकमिंग फेस्टिवल शेयर करते हैं जाके। ठीक है, सही है। सो ये रुझान भी काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम इंटरनेट यूजर्स की बात करें पाकिस्तान में, तो इंटरनेट यूजर्स जो जनवरी 2020 में है, उनकी फिगर जो सामने आती है, देयर आर अराउंड सम 76.38 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, सही है। एंड the increase between 2019 to 2020 has been of 11 million more internet users. ठीक है, so internet penetration is increasing. ठीक है, लास्ट ईयर से अब तक जो है 35% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और वी हैव सम 5 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स इन द कंट्री। ये फिगर्स 2017 की हैं। ठीक है, एंड वी हैव सम 2000 ई रिटेलर्स, जिसमें के 375 जो हैं दे एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट 90% of them, their preferred mode of transaction is cash upon delivery. हम अगर लास्ट 5 इयर्स के ऑनलाइन बाइंग ट्रेंड को देखें, तो अगर हम 2016 में देखें तो ऑनलाइन बाइंग 2016 में जो थी वो 15.8% हुई थी। 2017 में हम देखें तो इट वाज 21.64%, और अगर हम 2018 में देखें इट वाज अराउंड 51%। हम अगर 2019 में देखें तो इट वाज 80.1%, और 2022 में देखें तो ये इसमें अराउंड 90% को ये टच कर रही है। ठीक है, तो वी सी पॉजिटिव फिगर्स। अगली चीज जो मैं आपसे स्टूडेंट शेयर करूंगी, आई टॉक अबाउट सम अदर फैक्ट्स अबाउट आवर कंट्री। ठीक है, इसमें मैं आपके सामने कुछ इमेजेस रखूंगी, और ये इमेजेस से हम जो है देखेंगे कि प्रोविंस वाइज जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑर्डर्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, सबसे कम कहाँ पे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम देख रहे हैं कि प्रोविंस वाइज जो ऑर्डर शेयर है ई कॉमर्स का, वो पंजाब में 55% है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तालीम वहाँ ज्यादा है, they are socio-economically different from other provinces, so it makes sense that e-commerce has more penetrated there, followed by Sindh, and then we have KPK, we have Azad Kashmir, and we have Balochistan. ये figures आपको आनी चाहिए because you are e-commerce students. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है मेरे पास, जिसमें I have lot of things going on, लेकिन हम जो है यहाँ से सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे जिनसे हमें अभी मतलब है। सो ये हमारे पास जो फिगर है पहली, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन फैक्टर्स, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 15 दैट रिपोर्ट्स ओनिंग और यूजिंग ईच फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस। ओनिंग और यूजिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कितने लोग पाकिस्तान में जो हैं उनके पास कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और सर्विस है। अच्छा, ओके, ये डेटा पूरा पाकिस्तान को लेके, ठीक है, सही है। I was trying to start from something very simple, लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर मैं स्टार्ट कर लिया तो let's make sense out of it. तो 18% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका किसी बैंक में अकाउंट है, 18% पीपल।
ठीक है, दे हैव एन अकाउंट विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सोचें 100% में सिर्फ 18% लोगों के पास बैंक्स में अकाउंट है। ठीक है, उनमें से 1% जो इनके पास क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, सही है। और उन 1% में से 0.7% जो है वो खवातीन है। ठीक है, और 1-2% जो है वो दे आर मेन। ठीक है, 6.9% पीपल इन द कंट्री हैव मोबाइल मनी अकाउंट। ठीक है, जैसे जैज कैश है। ठीक, some 8% people make online purchases or pay bills online. I have recently been a part of it. I mean, somebody in my family used to pay the bills. ठीक है, अच्छा, my father is old school. He'll go to the bank and he'll pay the bill. ठीक है, अच्छा, ever since it's been a short while के चीज़ें घर की अब मेरे हाथ में है। I mean, कुछ चीज़ें मैं घर की जो है वो देखती हूँ, तो बिल्स क्लियर करना जो है वो मेरी जिम्मेदारी होती है। आई मीन माय फादर इज फार टू ओल्ड टू वॉक टू द बैंक नाउ और टू इवन गो टू द बैंक नाउ। ठीक है, एजिंग है और मसले मसाइल भी हैं उनके, तो मैं फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है आई हैव एन ऑनलाइन अकाउंट एंड आई क्लियर ऑल माय यूटिलिटी बिल्स फ्रॉम देयर। सो आई हैव रिसेंटली बीन पार्ट ऑफ दिस 8% ऑफ पीपल। अच्छा, percentage of women making online transactions, there are 3.3% women who make online transactions in Pakistan, and percentage of men making online transactions are 12%. Men make more online transactions. ठीक है, men have more credit cards. सही है। और इनमें भी जो फिगर है 18% की, जिसमें like 18% people in Pakistan have financial accounts, have an account with financial institution, obviously majority से मेल ही होगी ना। ठीक है, सही है। तो ये तो समझ में आती है हमें बात। ठीक है, सही है। अच्छा, देखिए स्टूडेंट, ये सब फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? कल अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी में आपका इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू दराज में है, ठीक है, या आपका इंटरव्यू, आजकल तो कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं यार, तो बिल्कुल ब्लैंक जाना अच्छी बात नहीं है। तो ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है मेल ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन या फीमेल्स करते हैं। तो नंबर्स में हमेशा आप जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी बात में प्रिसिशन आता है। ठीक है, कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, सवाल तो यहाँ से शुरू होता है ना। ठीक है, so these figures are good. They're always, it's always good to unfold yourself with some stats. अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स स्पेंट बाय कैटेगरी। जब हम ई कॉमर्स पे स्पेंडिंग करते हैं तो किस कैटेगरी पे खरीदारी ज्यादा की जाती है? ठीक है, ये है टोटल अमाउंट स्पेंड इन कंज्यूमर ई कॉमर्स कैटेगरीज इन 2019। ये फिगर्स पाकिस्तान की हैं, ज़हन में रखिएगा। टोटल अमाउंट स्पेंट इन कंज्यूमर ई कॉमर्स कैटेगरीज, तो फैशन और ब्यूटी पे स्पेंड किया गया $932 मिलियन। पहले देखें सबसे बड़ी फिगर कौन सी है। एक फिगर 932 की है, ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक 932 की है, एक 429 की है, 185 है, 168 है, 121 है, 39 है, 3.7 है और 228। सबसे बड़ी सबसे छोटी फिगर आप देख लें तो उससे आपको कैटेगरी पे अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है ई कॉमर्स में, वो फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे है, $932 मिलियन। और सबसे कम किस पे है? ट्रैवल और अकोमोडेशन पे। यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू लोग सबसे कम, जब ई कॉम मतलब ट्रैवलिंग तो लोग दुनिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी उनकी ये चॉइस के वो ई कॉमर्स के थ्रू जो है टिकट्स खरीदें या टिकट्स कंफर्म करें, अकोमोडेशन या ट्रैवलिंग का इंतजाम करें, ई कॉमर्स के थ्रू वो सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, आप देखें ना, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग भी कम है इस पर, 3.17। अच्छा, एक मिनट यार, ये बिलियंस में, ये बिलियंस में। तो फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ हमारे पास? हमारे पास है दिस वन, डिजिटल एंड म्यूजिक, यही है। ठीक है, डिजिटल एंड म्यूजिक है। सबसे ज्यादा कौन कौन सा है? फैशन एंड ब्यूटी। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स, होम इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमारे पास है पर्सनल एंड फूड एंड पर्सनल केयर, $185 मिलियन। फिर हमारे पास है फर्नीचर अप्लायंसेस। अच्छा यार, ये है ही असेंडिंग ऑर्डर में, ये है ही असेंडिंग ऑर्डर में, विद द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, सही है। देन वी हैव टॉयज एंड अदर हॉबीज, देन वी हैव डिजिटल म्यूजिक एंड वीडियो गेम्स। बहरहाल इन सब कैटेगरीज में स्पेंडिंग की जा रही है ऑनलाइन ई कॉमर्स की कैटेगरीज को लेके। ठीक है, इसमें ट्रैवल भी है, टॉयज एंड हॉबीज भी हैं, डिजिटल म्यूजिक भी है, वीडियो गेम्स भी हैं, फर्नीचर अप्लायंसेस भी हैं, फूड एंड पर्सनल केयर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फैशन एंड ब्यूटी भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज पे हेवली स्पेंड किया जा रहा है वो क्या है? फैशन एंड ब्यूटी। सही है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, ये है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द टोटल अमाउंट स्पेंड।
अच्छा, ये फिगर पिछले फिगर से क्यों अलग है? उसमें हम क्या देख रहे थे कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ के सेक्टर में हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा स्पेंड किया रहा है उसमें ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है। 122% ग्रोथ जो है सालाना, वो फैशन एंड ब्यूटी में है। दिस इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, दिस इज फॉलोड बाय फूड एंड पर्सनल केयर। एम आई राइट? हाँ, ठीक है। This is followed by furniture and appliances, and this is followed by electronics. This is followed by toys and hobbies, and this is followed by digital music. This is followed by video games, and this is followed by travel and accommodation. ठीक है, सही है. What do we have next? We have online purchases of consumer goods. Online purchases of consumer goods. So total number of people purchasing consumer goods online in 2019. कितने लोगों ने online buying की 2019 में? So there were 44.1 million people. What was the value of those goods in terms of money? So it was, the whole purchase done was of $194 billion. Value of the market for online consumer goods purchased last year. कितने लोगों ने buying की, कितने worth की $194 billion की. अच्छा, एक इंसान जो है कितना रेवेन्यू देता है जब वो ऑनलाइन बाइंग करता है? सो वी हैव एवरेज एनुअल रेवेन्यू पर ऑनलाइन कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, सही है. जो पूरी ऑनलाइन मार्केट है वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन करती है ना. तो जब एक फर्द ऑन द एवरेज, जब एक शख्स जब ऑनलाइन बाइंग करता है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये कंट्रीब्यूट $44. ये पाकिस्तान के फिगर्स हैं. ठीक है. और जो ऑनलाइन कंज्यूमर गुड्स हैं, एनुअल रेवेन्यू पर यूनिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना परसेंट बनता है? 3% बनता है. ठीक है, सही है. ये मेरे पास है डिजिटल पेमेंट्स का ओवरव्यू. डिजिटल पेमेंट्स का ओवरव्यू है मेरे पास. ये फिगर्स पाकिस्तान के मेरे पास. ये है नंबर ऑफ पीपल मेकिंग डिजिटली इनेबल्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस. कितने लोग पेमेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो कि डिजिटली इनेबल्ड हैं, ई कॉमर्स के थ्रू होती हैं? 30.6 मिलियन पीपल आर डूइंग इट. और जो टोटल रेवेन्यू ऑफ पेमेंट्स की स्ट्रीम जो जनरेट होती है वो 9.8 बिलियन की जनरेट होती है इससे. What do we have next? राइड हेलिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है हमारे यहाँ पे. ठीक है. वी हैव एयरलिफ्ट, वी हैव करीम, वी हैव स्विवल. तो ये भी जो है ऑब्वियसली बात है ई कॉमर्स के थ्रू ही काम कर रहा है. ठीक है. तो इसको भी हम जरा देख लें. नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डिजिटली इनेबल्ड राइड हेलिंग सर्विसेज. कितने लोग हैं? 9.4 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर यूजिंग इट. ठीक है. सॉरी, फिगर्स 2019 की है. ठीक है. टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटली इनेबल्ड राइड हेलिंग मार्केट. ये मार्केट कितने वर्थ की है? 212 बिलियन की मार्केट है. ठीक है, सही है. एनुअल ग्रोथ कितनी है इसमें? इस पूरी इसमें 27% ग्रोथ है. ठीक है. और जो कितना रेवेन्यू जो है वो ये राइड हेल सर्विस जो है वो कमा रही है? $23 ऑन द एवरेज. एक शख्स जो है सालाना जो है वो राइड हेलिंग सर्विसेज का अगर हम रेवेन्यू निकालें तो एक शख्स ₹23 ऐड कर रहा है. ठीक है. अच्छा, फिर हम बात करेंगे डिजिटल एडवर्टाइजिंग की. डिजिटल एड्स जो हम देखते हैं, कुछ एड्स टेलीविजन से आते हैं, कुछ एड्स रेडियो से आते हैं, अखबार से आते हैं, कुछ डिजिटल एड्स होते हैं. हम जो इंटरनेट खोलते हैं तो बैनर एड्स आते हैं बहुत सारे, राइट पे लेफ्ट पे. हम आईपैड खोलते हैं उस पर एड्स आते हैं, मोबाइल फोन्स खोलते हैं उन पर एड्स आते हैं. तो डिजिटल एड्स तो आजकल बहुत हैं. हम यूट्यूब खोलते हैं उसमें कितने एड्स आते हैं. ठीक है, सही है. हमको वीडियो देखते हैं उससे पहले एक ऐड आ रहा होता है. तो सारे डिजिटल एड्स आए ना. फेसबुक पर कितने एड्स होते हैं. तो कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस तो बढ़ाई है. ठीक है. तो जो टोटल एड स्पेंड है डिजिटल जो 2019 में था, तमाम कंपनीज जिन्होंने ऐड दिए, उसकी पूरी जो फाइनेंशियल वर्थ थी इट वाज $856 मिलियन. 2019 तो अगर हम देखें तो टोटल डिजिटल एड स्पेंड जो था वो $856 मिलियन का था. ठीक है, सही है. जो इनमें से बैनर एड्स जो थे वो $59 मिलियन के थे. द स्पेंडिंग डन ऑन डिजिटल बैनर एड्स वाज दिस मच. ठीक है. जो वीडियो एड्स पे स्पेंडिंग थी वो $48 मिलियन की थी. ठीक है. क्लासिफाइड एड्स जो थे वो 38 पॉइंट. तो क्लासिफाइड एड्स भी डिजिटल एड्स में आते हैं. लेट अस नॉट इग्नोर देम. ठीक है, सही है.
Yeah. Likewise, this chart also has a figure, so you can now make out what is this sharing. ठीक है, हमने काफी कुछ शेयर किया. अच्छा, अब मैं क्या करूंगी आपसे, अब हम थोड़ा सा सिनारियो पढ़ते हैं आपकी बुक का. ठीक है, थोड़ा सा सिनारियो हम पढ़ते हैं आपकी बुक का. हम जरा बुक थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं और लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू विद यू फ्रॉम हेयर. ठीक है, सो वी हैव ऑनलाइन रिटेल एंड सर्विसेज. मैं जैसे आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको टॉपिक वाइज जो है बुक का टॉपिक वाइज जो है आपको मैं आई गिव यू अ थंबनेल डिस्क्रिप्शन, तो आप चीज़ों को जो है वो लेटर ऑन प्रूव करिएगा. ठीक है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप वीक में पहले, क्लास से पहले, यू कैन ऑलवेज पोस्ट क्वेश्चंस टू मी or topics that you want me to brief you on, so I can brief them first on the priority. But in case if you are not sending me any list, so I then myself I design an overview of the chapter. Okay. So I'll give you a detailed overview of the chapter. I've started with giving you a detailed insight on the online retail sector of Pakistan. I told you that this chapter has been designed given the situation of the US economy, which we cannot ignore, but you should be having some facts about your own homeland too. ठीक है. So we are starting with the online retail and services. में पहली चीज जो डिस्कस की गई है वो जो है इंसाइट है अबाउट द ऑनलाइन रिटेल सेक्टर. आर्टिकल 9.1 जो है वो पूरा जो हम बता रहा है, इंसाइट दे रहा है अबाउट ऑनलाइन रिटेल सेक्टर. ठीक है, सही. और जो पैसेज है हमारे पास उसके ऊपर, ये पूरा पैसेज जो है, इट टॉक्स अबाउट अ फ्यू थिंग्स. इट टॉक्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग. So it basically tells about the orientation of the entire chapter. हम जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं इसमें हम ऑनलाइन रिटेलिंग को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम इसके सिर्फ फ्रूट्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कैसे ये मतलब किसी भी ई कॉमर्स मर्चेंट के लिए फायदेमंद है. हम ये भी देख रहे हैं कि ई कॉमर्स मर्चेंट जब ऑनलाइन रिटेलिंग करता है तो किन किन मुश्किलात से गुजरता है, या कौन कौन चीज़ें जो है अभी तक जो है वो इसका सोल्यूशन उसे नहीं मिल पाया और चैलेंजिंग है. So this opening passage basically talks about the advantages and disadvantages of e-commerce, online retail in particular. ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहली बात जो करेंगे, मैं आपको इस पैसेज को ब्रीफ कर रही हूँ. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस पैसेज. इसकी डिटेल्स को आप स्टडी कर लीजिएगा. पहली चीज जो हम स्टूडेंट्स बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि देखिए, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट्स में दूसरे को होता है, ठीक है, वो ये है कि ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं, ये ऑनलाइन रिटेलर्स जो हैं, इनको सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि इनको फिजिकल सेटअप्स नहीं बनाने पड़ते. फिजिकल सेटअप को आप जानते हैं कि रन करने के लिए आपको खासी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है. तो एक एडवांटेज ये है कि ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं इनको एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिजिकल स्टोर चाहिए होता है. ठीक है, और स्टोर में लोगों को रखना, उस स्टोर की ऑपरेशनल कॉस्ट बेयर करना, तो वो कॉस्ट अपनी है. लेकिन जब वो ऑनलाइन मामला को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी ये कॉस्ट जो होती है मिनिमाइज हो जाती है. कि ये एडवांटेज होता है आपको. ठीक है. एक डिसएडवांटेज जो ऑनलाइन सेलर्स को देखने में आता है वो ये है कि दे हैव रेजर थिन प्रॉफिट मार्जिन्स. कुछ खास प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं होते हैं. इनके फिजिकल स्टोर्स में प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हैं. ठीक है, और फिजिकल स्टोर्स की जो ऑडियंस होती है, उनका जो कंज्यूमर फुटफॉल होता है, उनकी जो कंज्यूमर लॉयल्टी होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है, उनका ब्रांड नेम काफी स्टैब्लिश होता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो दे हैव मोर एन एज ऑन ऑनलाइन रिटेलर्स. लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो सर्विस सेक्टर है वो ऑनलाइन रिटेलर कैटेगरी में ज्यादा ग्रो करता है. जो सर्विस सेक्टर है हमारा, ठीक है, सही है. सर्विस सेक्टर में मेरे पास आ जाता है बैंकिंग, आ जाता है ब्रोकरेज, आ जाता है ट्रैवल, आ जाता है जॉब हंटिंग कंज्यूमर्स, आ जाते हैं कस्टमर्स, आ जाते हैं, सॉरी. तो ये सारे काम जो हैं, ये सारे पेशे की नौयत जो है सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज को लेके है ना. तो उसमें ज्यादातर जो मामला होता है वो इट इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. तो जो वेब है इट इज आइडियली सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेक्टर. तो सर्विस सेक्टर जो है उसमें देखा गया है कि वो काफी ग्रो करता है. ठीक है, जो नॉन सर्विस सेक्टर है उसमें ऑफलाइन सेक्टर ज्यादा ग्रो करता है क्योंकि आपको फिजिकल सेटअप उसमें चाहिए ही चाहिए होता है. इट सुपरसीड्स. ठीक है,
द ऑनलाइन सेक्टर। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो है वो देखा गया है कि वेब इज आइडियली सूटेड। ठीक है, बिजनेसेस अगर ट्रैवल को लेके हो, जॉब हंटिंग को लेके हो, ब्रोकरेज हो, बैंकिंग हो, तो ज्यादातर मामला जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पे लेके होते हैं। तो वेब इज समथिंग यू नो दैट सर्व्स बेस्ट। अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन, इस पैसेज में बेसिकली यही बात की गई थी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन रिटेल सेक्टर को लेके, हम आर्टिकल 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पैसेज आपका ऑनलाइन रिटेल सेक्टर को लेके है, इसमें बेसिकली आपको जो बताया गया है, आपके साथ डिस्कस किया गया है टेबल 9.1। तो मैं आपको इसी को ब्रीफ करती हूँ। ठीक है, इसमें डिस्कस किया गया है टेबल 9.1, तो मैं आपके साथ इसी को ही ब्रीफ करूंगी। ठीक है, सही है। इसमें यार राइटर कह रहा है कि जो रिटेल मोबाइल ई कॉमर्स है, दिस इज एक्सप्लोडिंग। मैंने आपसे कहा कि मोबाइल गैजेट्स जो हैं जब वो बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मोबाइल ई कॉमर्स है वो भी एक्सप्लोड कर रहा है। ठीक है, फिगर्स कुछ दी गई हैं कि ये 2015 में इट वाज स्टैंडिंग एट 81 बिलियन एंड टुडे इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 116 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो सोशल नेटवर्क्स जो हैं सच एज फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन रिटेल जो है वो यहाँ पे मूव कर गई है। ठीक है, कंज्यूमर की ई मर्चेंट की थिंकिंग ये है कि ही कैन बेस्ट फैसिलिटेट कंज्यूमर्स थ्रू सोशल ई कॉमर्स। ठीक है, और उसने फेसबुक पे जो है बहुत से ऑप्शंस दिए हैं, फ्रॉम अ बाय बटन टू यू नो अदर रिएक्शन बटन, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। लोकल ई कॉमर्स हो गए, छोटे पैमाने पे नेबरहुड लेवल पे जो है बाइंग और सेलिंग होती है, दैट इज पिकिंग पेस। ठीक है, सही है। जो लोकल ई कॉमर्स है, इसकी एक एग्जांपल जो है हमारे पास राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, जैसे उबर है, करीम है, स्विवल है, एयरलिफ्ट है, ये सब लोकल ई कॉमर्स में ही आती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑनलाइन बायर्स जो हैं वो यूएस में बढ़े हैं। हमने अपनी फिगर्स अभी देखी थोड़ी देर पहले। ठीक है, online retailers remain generally profitable or focusing on revenue growth, increasing the size of average purchase amounts and improving efficiency. अच्छा, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं इनका ज्यादातर फोकस जो है, या ये प्रॉफिट्स कैसे अर्न करते हैं, ये अपने मैकेनिज्म्स को एफिशिएंट बनाते हैं। यानी कि ऑर्डर फुलफिलमेंट से लेके गुड्स की डिलीवरी को जो है, ये अगर सक्सेसफुल होते हैं उसको मैनेज करने में, तो दिस इज हाउ दे फोकस, एंड दे फोकस ऑन रेवेन्यूज एंड हाउ दे मैनेज गेनिंग देम। ठीक है, ऑनलाइन रिटेल रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चैनल। यूएस की बात हो रही है। ठीक है, सही है। पाकिस्तान में ऑफलाइन रिटेल जो है वो ज्यादा फास्टेस्ट है। बाइंग ऑनलाइन हैज बिकम अ नॉर्मल मेन स्ट्रीम एवरीडे एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ हम ये शहरों के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूएस में ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द यूएस आर नाउ ऑनलाइन शॉपर्स। हमारे यहाँ 90% नहीं है। हमने भी कहा कि मोबाइल यूसेज बढ़ गई है, 3G 4G कनेक्शंस बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी ये सेक्टर क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, the selection of goods for purchase online continues to increase luxury good items, jewelry, gourmet, groceries, furniture and wine, etc. and experience। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो लग्जरी गुड आइटम्स जो हैं अभी तक जो है वो ऑनलाइन बाइंग का हिस्सा नहीं बने। ठीक है, हमने भी देखा कि जो कैटेगरी ऑफ गुड्स खरीदे जा रहे हैं उसमें जो लग्जरी गुड्स थे वो हमें कुछ खास नजर नहीं आए हैं। ज्यादातर जो फोकस था वो फैशन और रिटेलिंग पे था। ठीक है, यूएस में जो है लोग इससे फर्नीचर भी खरीद रहे हैं आज। ठीक है, लग्जरी गुड्स भी खरीद रहे हैं, ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं। I mean, they may buy high-end brands like Tiffany, a jewelry store selling online. So they may people in the US may be placing orders for something as expensive as jewelry through an online store. But in Pakistan, there is a lack of trust and belief in case of transactions. So people hesitate, you know, buying big ticket things. Moreover, in the US, we see informational shopping. Informational shopping is all shopping related to big ticket items like buying cars and appliances. In Pakistan, that is not the case. Specialty retail is also seen to, you know, a hike in the US. This includes buying customized retail goods. It happens rare in Pakistan though. Online retailers place an increased emphasis on providing improved shopping experience। तो ये हमारे यहाँ भी है। इसमें हम मतलब कह सकते हैं कि it is happening slowly in पाकिस्तान के पहले सिर्फ वेबसाइट बना के छोड़ दी जाती थी और कंज्यूमर्स जो है सारी जानकारी वहीं से लेते थे, लेकिन अब सोशल नेटवर्क से भी पेजेस बनाए जा रहे हैं, फेसबुक पेजेस बनाए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पेजेस जो हैं वो यूजर फ्रेंडली हों, ईज ऑफ नेविगेशन हो, इसमें ऑनलाइन इन्वेंट्री जो है अपडेटेड हो, आपके इंटरेक्टिव टूल्स हो, कंज्यूमर फीडबैक और रेटिंग को जो है वेटेज दी जाए और सोशल शॉपिंग की अपॉर्चुनिटीज मजीद बढ़ें। तो ये एक्सपीरियंस के बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी ये रुझान देखने में आ रहा है कि वी हैव मोर better version of e-commerce, be it social, mobile or local, and it was yesterday.
और इसमें हम क्या देख सकते हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स इंक्रीज द यूज ऑफ इंटरैक्टिव मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लॉग्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड वीडियोस दैट एक्सप्लॉइट डोमिनेंस ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस एंड ऑफर फीचर्स सच एज Zoom, color switch, product configuration, virtual simulations in household businesses and things. ये हमारे यहाँ देखिए आ रहा है कि today the e-merchants are using more good marketing technology which are interactive in nature, जिससे कि वो अपने blog pages बना रहे हैं, user generated content को काफी promote किया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि अपने reviews आप लिखें। मेन पेजेस पे ब्लॉग्स के भी सेक्शन होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स के व्यूज को लिखा जाता है, और बास कंपनीज नेगेटिव रिव्यूज नहीं मिटाती क्योंकि वो चाहती है कि मामला ओरिजिनल रहे। दराज के पेज पर अगर हम जाएं तो काफी सारे आई हैव सीन सम नेगेटिव रिव्यूज टू एंड दराज डज नॉट वॉश इट ऑफ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी ओरिजिनलिटी दिखा रहा है ना, राइट। सारे एक पेज पे सारे पॉजिटिव व्यूज भी होना जो है डाउट्स क्रिएट करता है। जैसे मैं तो डाउटफुल होती हूँ कि ऐसा कैसे कि एक सेलर से किसी को भी कोई शिकायत ही नहीं हुई है। ये बाज़ दफा ऐसा होता है कि व्हेन आई एम बाइंग ऑनलाइन मुझे कोई शिकायत होती है, मैं नेगेटिव कमेंट लिखती हूँ जाके, और मैं देखती हूँ कि 10 मिनट के बाद वो कमेंट वहां पे नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज जिनको पैसे इस चीज के दिए जाते हैं कि वो पेज को ऑप्टिमाइज करें, और बहुत दफा वो फेक तरीकों से भी करती है। उनको कहा जाता है कि फेक कमेंट्स आपने हटा देने हैं। I mean, lockdown था अभी, so obviously I'm buying less things for myself when it comes to when I'm working on usual days, so I'm buying more stuff. It makes sense. ठीक है, हम जब घरों में हैं, महसूल है हम, तो हम ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा खरीदारी एसेंशियल्स की होती है, बट मे बी just for a change I placed an order for some clothing item for myself. I ordered for a tangerine orange and I got a soft pink instead. ठीक है, अच्छा, it came all the way from it was from some other city. ठीक है, तो वो आया ही 15 दिन के अंदर एक तो, और जब आगे उन्होंने बता दिया था, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बस हम जो है वो आप जो ही हमें ऑर्डर देंगे तो हम बना के देंगे, पहले से वापस इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे। ठीक है, चले, इस समझ में आती है बात। ठीक है, 15 दिन में तो आया, विषय पर ईद आ गई थी तो उसकी वजह से भी एक आध दिन डिले होता है, बट आई वाज फाइन विद दैट। लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई ऑर्डर्ड ए एंड आई गॉट बी इन कलर। ठीक है, तो मैंने जाकर उनके पेज पे लिखा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एक तो टाइम आपने बहुत लिया, आइटम आपका बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरी बात जो ये है कि आपने वो चीज़ भेजी जो आपके पास थी, ना कि जो मैंने मांगी थी आपसे। तो उस पर फौरन से 1 सेकंड के बाद भी मैंने उनसे पर कहा कि आप काइंडली इसको जो है वो, मैंने लिखा अंग्रेजी में कि आप प्लीज काइंडली इसको बदलें। तो उन्होंने कहा कि आप ये कमेंट लिखने से पहले अगर मुझे प्राइवेटली कह देती कि आप ये चेंज करें तो हम सोच सकते थे इस बारे में। ये कॉन्वर्सेशन सारी पेज पे लिखी हुई थी, और आप आप ये सोचें कि मतलब मैं बस इतनी देर होगी पानी पी के वापस आई हूँ, कितनी देर लगती है, और वो पेज पे से वो कमेंट हटाया हुआ था उन्होंने। और फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली, मैसेंजर पर्सनली दे रीच्ड आउट टू मी। मेरा पूरा सेल का उन्होंने पूरी ट्रेल निकाल दी। उन्होंने कहा कि मिस आप यहाँ बताएं कि क्या मसला है, हमारे पेज पर नेगेटिव कमेंट ना लिखें। ठीक है, तो यार ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज होती हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं कि आपने नेगेटिव कमेंट्स पेज पर लिखे रहने नहीं देने। ठीक है, लेकिन बाज इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं या बाज अच्छी लोकल कंपनीज जो कि अच्छा काम कर रही हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ भी देती हैं बाज दफा। ठीक है, दराज से बहुत नेगेटिव कमेंट्स होते हैं बाज दफा, लेकिन डिस्पाइट दैट दराज सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान में कंपनी है ऑनलाइन रिटेलिंग की है। तो हर कोई अपने तरह से चीजों को मैनेज कर रहा है, लेकिन ये है कि आज हमारे पास ये चीजें काफी, आई मीन ई कॉमर्स मर्चेंट्स आर यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने ब्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे यूजर अपना कंटेंट जनरेट कर सकता है, वीडियोस हैं जो कि प्ले हो सकती हैं, और जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं वो इन वीडियोस को देख सकते हैं और ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज वीडियोस के अंदर जूम का ऑप्शन होता है पेजेस में, आप डिफरेंट कलर्स को स्विच करके देख सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, हर डायमेंशन से देख सकते हैं, और चीज़ों को जो हाउस होल्ड गुड्स हैं और बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं उनको भी हम वर्चुअली सिमुलेट करके दिखाया जा सकता है। तो ये बात पाकिस्तान में भी है कि पेजेस हमारे यहाँ काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं और इंटरैक्टिव मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। Then we have retailers who are becoming omni-channel retailers. ठीक है, अच्छा, omni channel retailers हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ये क्या होते हैं। ठीक है, and there are retailers who are integrating with multiple retail channels, and they are providing physical stores, and they also have a website, and they also have a mobile platforms. omni channel retailers जो हैं इनके सिर्फ physical stores होते हैं, they don't have an online store. ठीक है, and then there are other multiple retail channels जिनके एक ही वक्त में physical store भी है, उनका वेबसाइट से भी सेलिंग हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, और मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, सही है।
Then we have virtual merchants. They have a subscription based revenue model. ठीक है, तो subscription based revenue models हमारे यहाँ भी हैं, एक आध हम इनके बारे में बात करेंगे. And then it talks about big data and powerful analytical programs being used for predictive marketing by both large and small retailers. ठीक है, ये है सिचुएशन आपकी 9.1 में. हम 9.1 को मजीद डिस्कस करते हैं. तो जो फिगर 9.1 थी, ये टेबल 9.1 थी. इट वाज बीइंग मेंशन्ड समवेयर हियर. इसमें क्या था? तो टेबल 9.1 जो है हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया. इसमें पूरा ऑनलाइन रिटेल सेक्टर का यूएस का रिव्यू था. और मैंने जितने भी आपसे भी सेशन के स्टार्ट में फिगर्स शेयर करी, वो सारी फिगर्स जो थी वो पाकिस्तान को लेकर पर्टिनेंट थी. ठीक है, अब हम बात करेंगे रिटेल इंडस्ट्री की. तो अब हमें देखनी है फिगर 9.1 और देखना है कि ये क्या शेयर कर रहा है. अच्छा, ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो है फिगर 9.1 है. और फिगर 9.1 जो है पूरी यूएस की रिटेल सेक्टर को बता रहा है कि यूएस का जो रिटेल सेक्टर है उसमें कंज्यूमर गुड्स भी हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स भी हैं, मोटो भी है. मोटो जो है स्टूडेंट्स, ये बिजनेस होता है कॉल सेंटर्स का. ठीक है, वी हैव फूड एंड बेवरेज, वी हैव गैसोलीन एंड फ्यूल, वी हैव ऑनलाइन रिटेल एंड वी हैव जनरल मर्चेंडाइज. ठीक है, हम इंटरेस्टेड है ऑनलाइन रिटेल में. ये टोटल रिटेल है, ये टोटल रिटेल है. ठीक है, हम इंटरेस्टेड है ऑनलाइन रिटेल में, याद रखिएगा. ठीक है, सही है. रिटेल इंडस्ट्री जो है इसमें फिगर 9.1 को एक्सप्लेन किया गया था. तो ये मैंने आपको साथ शेयर कर ली है. अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन रिटेलिंग की. अब हम बात करेंगे ऑनलाइन रिटेलिंग की. तो ये जो मेरे पास है रिटेल इंडस्ट्री, इसमें जो है हम देखें तो हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं. हाउ मेनी सेगमेंट्स डू वी हैव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्म्स डू वी हैव. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 types of firms and there are 7 types of segments. ठीक है. अच्छा, they all of them offer online services. पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा. फूड एंड बेवरेज भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, स्पेशलिटी स्टोर्स भी दे रहे हैं, जनरल मर्चेंडाइज भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हैं, कॉल सेंटर्स भी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं और ऑनलाइन रिटेल भी दे रहा है. ठीक है, सही है. तो लेकिन हर सेक्टर का, हर सेगमेंट का, हर फर्म का जो है वो इंटरनेट यूजर अलग है और इंटरनेट यूसेज अलग है. फूड एंड बेवरेज की इंटरनेट यूसेज अलग होती है. हम जब फूड के ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो डिफरेंट होता है व्हेन वी आर बाइंग अ बिग टिकट आइटम लाइक अ कार और ज्वेलरी फ्रॉम टिफनी. तो ज्वेलरी खरीदने वाला या गाड़ी खरीदने वाला शख्स जो इंटरनेट यूज करता है, उसके इंटरनेट यूसेज के हैबिट्स और होते हैं. और जो शख्स किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहा है ऑनलाइन, उसके इंटरनेट यूसेज हैबिट्स और होते हैं. और उसकी ऑर्डर प्लेसमेंट और उसकी स्पेंडिंग यहाँ और यहाँ वाले कंज्यूमर की दोनों की अलग है. ठीक है, तो यूजर्स ऑफ इंटरनेट भी दोनों के जो है वेरी करेंगे हर कैटेगरी टू कैटेगरी, और यूसेज भी वेरी कर रहा है. ठीक है. अच्छा, इनमें से बाज हमारे पास जो है सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि फिजिकल स्टोर्स भी हैं और उनके वेब पेजेस भी हैं. ठीक है, सही है. ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक फूड एंड बेवरेज स्टोर है. फूड एंड बेवरेज का जो हमारे पास ये सेक्टर है, इसमें हम देते हैं फिजिकल स्टोर्स हैं और इसमें जो है ऑनलाइन जो है वो वेब पेजेस भी हैं हमारे पास. ठीक है, वेब से भी ऑर्डर हो रहे हैं. जैसे कि फॉर इंस्टेंस में आपने कहा कि मिस फूड पांडा का जो है अपना एक रेस्टोरेंट डीएचए में है और ये जो है वो वेब के थ्रू भी ऑर्डर्स लेता है. ठीक है, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है. राइट, ठीक है. सो इसमें से बाज एक जो फर्म्स हैं ऐसे उनके फिजिकल लोकेशंस भी हैं और वो वेब से भी ऑर्डर्स ले रही हैं. ठीक है. जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे ये हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, कंडीशनर्स हैं, जनरेटर्स हैं. ठीक है, ये जो है ये यूएस में जो है दे आर सोल्ड थ्रू वेब ऑर्डर्स. ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल वेब जो है इंफॉर्मेशनल टूल है. कंज्यूमर्स को काफ़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ड्यूरेबल्स खरीदने से पहले, तो प्रेफर करते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से हासिल करें, वेब से हासिल करें और फिर वो खरीदारी करना चाहते हैं. ठीक है, वो डायरेक्ट परचेज नहीं करते. अच्छा, पाकिस्तान में होम ड्यूरेबल्स जो है हम डायरेक्टली परचेज करते हैं जाकर डीलरशिप से. हम ऑनलाइन परचेज नहीं करते, हम वेब से ऑर्डर प्लेस नहीं करते. ठीक है.
अच्छा, फिर मेरे पास है मोटो रिटेलर्स। मोटो रिटेलर्स मैंने आपसे कहा कि ये कॉल सेंटर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं ये, ठीक है, सही है। And they accept orders 24 hours a day, and their job was to fulfill the order within 24 hours of the receipt, ठीक है, सही है। सो जो मोटो सेक्टर है आपका, इट इज सिमिलर टू द ऑनलाइन रिटेल सेक्टर। ऑनलाइन रिटेलिंग में भी यही होता है ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो रिसीट्स आती हैं, आपने उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है, आपने उनको ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है या बताना है कि गुड आज 3 दिन में 4 दिन में डिलीवर होगा या सेम डे होगा। तो मोटो रिटेलिंग जो है वो भी इस तरह से ही है, ठीक। सेशन इज गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग नाउ, तो it may disconnect any minute, but let me continue. If it closes तो वो तो फिर सामने ही होगा ना सबके, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं आपसे कही थी कि जो मोटो हमारा बिजनेस है, मोटो रिटेल सेक्टर जो है हमारा, जिसमें कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हम अगर देख लें तो ये जो है so it has been observed to be the fastest segment growing in the 70s and the 80s, ठीक है, सही है। And it grew as a result of growth in the national toll-free call system. I mean, the toll-free call system, it became fastest. It was growing, so did the business for call centers, and people were more switching towards the digital telephone systems. Okay, and the pricing for the long distance telecommunication, that was falling off, and there was an expansion in the credit card industry and associated technologies. इसके बगैर जो है, जो मोटो सेक्टर है वो ऑपरेट नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जब बढ़ी हैं एक साथ, क्रेडिट कार्ड की तरफ, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ग्रो की है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की जो प्राइसेस थी वो कॉल्स ड्रॉप हुई हैं, और लोग जो है वो स्विच कर गए डिजिटल टेलीफोन सिस्टम्स की तरफ, और टोल फ्री कॉल सिस्टम जो थे बढ़ने लगे, तो जो कॉल सेंटर का बिजनेस है वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिटेलिंग रेवोल्यूशन जो थी, वो जो थी, अगर हम देखें कि रेवोल्यूशंस किससे स्पॉन्टन टाइम पे आई हैं, तो सबसे रिसेंट रेवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजिकली मार्केट्स में आई है स्टूडेंट्स, वो ई कॉमर्स की है। और ई कॉमर्स से जो जो बिल्कुल पहले आई है, जो कि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो वो जो है वो मोटो रिटेल सेक्टर की है, राइट। The motor retail sector preceded e-commerce sector as far as technological retail revolution is concerned. One should remember that. अच्छा, फिर हम बात करेंगे, सो दिस पैसेज हैज बीन डिस्कस्ड। आगे हमारे पास ये पूरा पैसेज हमने डिस्कस किया है, ठीक है, सही है। फिर मेरे पास है ऑनलाइन रिटेलिंग, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें राइटर आपके साथ जो बात मैं आपसे शेयर करूंगी यहाँ पे, वो सिर्फ जो डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर रहा है कि ऑनलाइन रिटेल सेक्टर जो है वो यूएस में जो है वो ऑफलाइन रिटेल सेक्टर के साथ ही ग्रो कर रहा है। तो हम पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दैट ऑफलाइन सेक्टर जो है वो इट सुपरसीड्स ऑनलाइन सेक्टर। ज़हन में रखिएगा, नाउडेज दुनिया में पेंडेमिक है, ठीक है, तो यूएस में जो है अमेजोन कंपनी जो है, जो कि सबसे बड़ी वर्चुअल ऑनलाइन सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी है इस वक्त, उसने तमाम ऑफलाइन स्टोर्स को बैडली इट हैज बीटन देम अप, और उसके जो भी रिकॉर्ड बिजनेस किया है, ठीक है। पेंडेमिक की वजह से जाहिर है कि पीपल आर आइसोलेटेड, दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स सोशली अनलाइक इन आवर कंट्री। तो वहाँ पे लॉकडाउन फॉलो किया जाता है, लोग फ्यूचरिस्टिक हैं, ख्याल करते हैं, रिस्पॉन्सिबल लिविंग वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो पीपल टेंड टू बाय थिंग्स ऑनलाइन, और अमेजोन को बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स में। और इस दौरान देखा गया है कि ऑनलाइन बाइंग हैज एक्सीडेड ऑफलाइन बाइंग, लेकिन अदरवाइज जो है, जो जिस पर्सपेक्टिव में किताब लिखी गई है, तो उस पर्सपेक्टिव में तो नहीं था ना, कोरोना नहीं था, पेंडेमिक नहीं था, तो इसमें कहा जा रहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के बिल्कुल टेल पे है, फॉलो कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं कि जो ई कॉमर्स रिटेल सेक्टर सामने जो आया, ठीक है, मैंने आपसे कहा इससे पहले बिल्कुल जो रेवोल्यूशन आई थी वो क्या थी, मोटो रिटेल सेक्टर आया था, कॉल सेंटर्स के थ्रू जो थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है, सही है। तो अब हम स्टडी करेंगे कॉमर्स
रिटेल, इसके विजन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सही है। Just a minute, please.